So students, we are going to have a chapter, properties of bulk matter. When we talk about the properties of bulk matter, we mean the liquid at rest, then liquid in motion, then we have elasticity. So many concepts are there. First of all, we will be studying today liquids at rest. To understand liquid at rest, we must understand the sphere of influence. What is the meaning of sphere of influence? Suppose there is one molecule, so it has a range R. Range of what? R is a range of attraction. Range of influence. Means how much, up to how much distance, up to what distance it can influence the, another molecule. It can influence the another molecule. ये दूसरे molecule को कितना influence कर सकता है. That is what the distance, that is called range. That is called what? Range. Range we mean what? Up to what distance it can influence. Correct? तो ये किस distance तक influence कर सकता है? That is called what? Range. For example, जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज एक डिस्टेंस तक जाती है. करेक्ट? तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? रेंज. जहां तक आपकी वॉइस जाएगी दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेंज. तो रेंज इन फैक्ट इज व्हाट? रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन influence the other molecule. With the range taken as a radius, so we have 4 pi r square, that is called area. We assume that molecule is spreading its influence at equal distances as a radius r, so it becomes what? Sphere. So that is called sphere of influence. Any question? Is it clear? You need not to note down anything, just listen. Now if any other molecule of fluid comes in contact and they get attracted, and the two molecule A and B are of same nature, then it is called force of cohesion. Force of cohesion. What is force of cohesion? Force of cohesion is the force of attraction between two molecules, of same range. Force of cohesion of two molecules, right, of same nature. If two molecules are of same nature, then it is said to be force of cohesion. If they are of different nature, then it is said to be
force of adhesion. For example, if we have two dissimilar molecules, okay, then it is called forces of adhesion. For example, molecule A and B are different. Suppose this is liquid and this is glass, or this is a liquid of different natures, then this is called forces of what? Adhesion. And if they are of similar nature, they are called force of cohesion. Any question? The force of cohesion between two similar molecules, force of adhesion between two dissimilar molecules. Any question? Any doubt? Now the question comes, how we can use this concept for thrust exerted by the liquid. So thrust exerted by the liquid, how we can create that concept. अब मैं आपको बहुत एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं. हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में वी टेक लिक्विड. वी टेक व्हाट? लिक्विड. तो एक बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं? लिक्विड. सो स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं इसको सीधा ड्रॉ करता हूं, बिकॉज कैमरा में थोड़ा ज्यादा टिल्टेड दिखता है. करेक्ट. तो इसमें एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं. इस मॉलिक्यूल का वेट mg, एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके. या हम बोलते हैं इसका फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है ऐसे. सपोज इसका फोर्स ऐसे एक्ट करता तो ये एंगल बनता थीटा, एफ डैश. ये क्या बन जाता? एफ डैश साइन थीटा. और ये क्या बन जाता? एफ डैश कॉस थीटा. हाँ जी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. This liquid is at rest. This liquid is at Rest. तो एफ डैश साइन थीटा इज इक्वल टू 0. बिकॉज रेस्ट पे है तो ये लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कर रहा. रेस्ट पे है तो ये लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कर रहा. एग्रीड? एग्रीड. नाउ स्टूडेंट्स, एफ डैश कैन नॉट बी इक्वल टू 0. F dash cannot be equal to 0. So this implies sin theta is equal to 0. Correct? This implies theta is equal to 0. This implies net force is equal to mg
दैट इज इक्वल टू एफ डैश कॉस 0, तो एफ डैश इज इक्वल टू एम जी. इज इट राइट? तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह बना इस ट्रफ में all those liquid molecules exert force in the downward direction. Exert force in the downward direction. When it exerts force in the downward direction, it means liquid exert thrust. This net forces which are acting in the downward direction, that is called thrust. That is called what? Thrust. Thrust क्या है? जो net force acting downward. कोई शक, कोई सवाल? अब what is thrust? जैसे ये liquid है, तो ये सारे का सारा नीचे की ओर लग रहा है इस तरह से. तो ये सारे का सारा जो लिक्विड नीचे की ओर लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. तो थ्रस्ट क्या हुई? दैट इज इक्वल टू mg नेट या समेशन mg. नेट भी छोड़ो, समेशन mg. एनी क्वेश्चन? अब जैसे ये फिंगर है, दिस इज वन फोर्स. जैसे ये फिंगर है, दिस इज वन फोर्स. अगर हम बहुत सारी फिंगर्स को लगाएंगे ऐसे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रस्ट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? बोलिए, इज इट क्लियर देवांश? तो इस तरह से एक हम लगा रहे हैं ऐसे, दैट इज फोर्स. अगर ऐसे लगाया, दैट इज नंबर ऑफ फोर्सेस, थ्रस्ट. कभी आपने दिवाली वाले दिन रॉकेट को उड़ाया? वो रॉकेट को जब आप इग्नाइट करते हो, तो वो गैसेस नीचे की ओर छोड़ता है ना. जो वो गैसेस नीचे की ओर छोड़ता है, वो नेट फोर्सेस नीचे की ओर लगती है ना. दैट इज एक्शन. वो थ्रस्ट है. ऊपर की ओर रिएक्शन, वो थ्रस्ट का रिएक्शन है. मतलब थ्रस्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन दिस केस आप ऐसे हाथ रख के ब्लो करते हो ना, तो आपके हाथ के ऊपर क्या पड़ रहा है? थ्रस्ट पड़ रहा है. इज इट क्लियर? बैलून को फुला लो पूरा. फिर बैलून को आप जब पूरा फैला लेते हो बैलून को, एंड वो जो बैलून पूरा फुला होता है, दैट इज बीइंग एक्टिंग इन दी. जब उसको आप छोड़ते हो, उसको पीछे से हवा निकालते हो, वो भागता है ना बैलून. वो किसके कारण भागता है? थ्रस्ट के कारण. बुलेट मोटरसाइकिल को जब स्टार्ट करते हैं, मुंह के ऊपर एक हवा का फक सा नहीं मता, ठक हवा पड़ती है, दैट इज थ्रस्ट. कार के भी पीछे आप अभी मेरे को आई हैड जस्ट स्नीज्ड, यू नो, दैट इज थ्रस्ट, राइट? मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस
acting and spreaded over certain area thrust. हेलीकॉप्टर का ब्लेड घूमता है, वो हवा को नीचे की ओर पुश करता है, दैट इज थ्रस्ट. हेलीकॉप्टर के ऊपर रोटर घूमता है ना, वो रोटर की ना वो एंगल देते रहते हैं पायलट. अगर ऐसे एंगल करेंगे तो हवा नीचे की आएगी, फिर वो ऊपर को थ्रस्ट से उठेगा, फिर एंगल ऐसे कर देंगे, वो पीछे की ओर हवा मारेगा, फिर वो आगे की ओर जाएगा, दैट इज थ्रस्ट. इज इट क्लियर? नाउ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. अब ये जो फोर्स है, नेट फोर्स, एफ डैश कह लो, एफ कह लो, दैट इज इक्वल टू एम जी. मतलब एफ डैश इज इक्वल टू एफ, दैट इज इक्वल टू एम जी. तो व्हाट इज प्रेशर? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. still liquid exert pressure. कैसे? net thrust per unit area, that is the pressure exerted by the liquid. Net thrust exerted by area. जिस पे एरिया पे वो थ्रस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. कोई शक, कोई सवाल? तो इसका यूनिट वही है जो प्रेशर का है. प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो थ्रस्ट का भी वही है, न्यूटन पर मीटर, सॉरी, लिक्विड प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट इज ए फोर्स. कई बार एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट चला रहता है स्टूडेंट्स के अंदर. वो कहते हैं जी जो ये थ्रस्ट है ना, वो प्रेशर है. नहीं 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 नहीं, नहीं. थ्रस्ट प्रेशर नहीं है. थ्रस्ट क्या है? बेसिकली summation of forces. Summation of forces acting in a downward direction per unit area, that is called pressure. Hope it is clear. Any question? I did not make you to write because writing will definitely absorb time, but hope it is crystal clear. And कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Is it clear, students? बोलो. हाँ जी देवांश. सर हमें पहले वो बोला था कि थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स होती है. ऑफ कोर्स थ्रस्ट डिपेंड करता कैसे लग रही है. इस केस में ये परपेंडिकुलर फोर्स है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इस केस में ये परपेंडिकुलर फोर्स है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब ये थोड़ी है भी ये हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही लगेगी. अब आप स्विमिंग करते हो, पानी को पीछे की ओर थ्रस्ट मारते हो, पानी आगे की ओर थ्रस्ट मारता है ना. आप फायरिंग करते हो गन से, बुलेट्स का बर्स्ट निकलता है, कंधा पीछे की ओर जाता है ना. कभी कभी अभी इतने एजिटेशंस हुए तो कहते नहीं वाटर कैनन यूज किया पुलिस ने, तो वो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस वाटर कैनन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फेंकती है. वो क्या थ्रस्ट ही डाल रही है. वो वाटर कैनन इतनी प्रेशर से जाता है कि बंदा गिरा देता. वो थ्रस्ट ही है वो. होप इट इज क्लियर. कोई डाउट? देखिए, टीचिंग शुड बी नॉट मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग.
तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग म्यूट रहते हो, बोलते नहीं हो. दैट्स वाई आई ऑलवेज मेक योर कैमरा टू बी ऑन एंड यू आस्क मी क्वेश्चंस. प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस. लाइव सेशन आई एम गिविंग यू. कोई डाउट? यूनिट क्लियर है? Yes, sir. इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Right. Yes, that is in fact a thrust, you know. Okay. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं.